Hello, good morning. Today I will discuss the application of the exact differential equation as well as the Maxwell relation. In the previous video, we derived the derivation regarding Maxwell relation. There are the four relations of the Maxwell: 1, 2, 3, 4. Then we derive the TDS equation. TDS have two equation, equation 1 and equation 2. So when we derive the TDS equation, we consider the first entropy is the function of temperature comma volume, and second is the entropy is the function of temperature comma pressure. By these two, we derive the TDS equation 1 and TDS equation 2. So with the help of these two equations, we derive our study about the heat capacity relation. We know that in the thermodynamics there are the two heat capacity. One is the Cp. Cp means specific heat at constant pressure, and second one is the Cv. It means that specific heat at constant volume. So by these two methods, we Cp and Cv, we derive its relation into the term of exact differential. So first TDS equation, this equation direct comes from the derivative part. One is the TDS is equal to Cv dt plus T del P by del T at V into dV. This is the equation number 1. Second equation, TDS is equal to Cp dt minus T del P by del T at constant pressure into dP. This is the second derivation. So कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, TDS दोनों में कॉमन है, तो वहां से हमारी वैल्यूज जो आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन 1 2, दोनों में हमारा TDS आ रहा है, तो पहली इक्वेशन CvdT प्लस T del P by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dV इज इक्वल टू this term Cp dt minus T del V by del T at constant P dP. This is equation number 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों में TDS इक्वेशन आ रहा था. इक्वेशन 1 भी हमने लिया था, तो उसमें भी TDS को हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन मान के इसको ड्राइव किया था, और सेकंड जो इक्वेशन है उसको हमने टेम्परेचर और प्रेशर मान के किया था. क्योंकि Q इज इक्वल टू एम Cp dt और कांस्टेंट प्रेशर पे, और Cv जो है Q इज इक्वल टू एम Cv dt, तो हमारा जो Cp और Cv है उसमें ही हमको रिलेशन को चेक करना है. अब नेक्स्ट हम आते हैं, दोनों को इक्वल करने के बाद यहाँ पे Cv dt है, यहाँ पे Cp dt है, तो दोनों को एक साथ ले लें, dt कॉमन हो जाएगा, Cp माइनस Cv इंटू dt, Cv dt को इधर भेज दें तो Cp माइनस Cv हो जाएगा, और इस टर्म को हम इधर भेज दें तो ये माइनस टी है, ये प्लस टी, ये एडिटिव हो जाएगा. एक साथ Cp माइनस Cv dt आएगा, Cp माइनस Cv से हमने दोनों जगह इसको डिवाइड कर दिया. तो हमने पहला क्या काम किया कि TDS इक्वेशन की दोनों इक्वेशन को लिखा, फिर Cp माइनस Cv को एक साथ ले लिया, और फिर Cp माइनस Cv से कॉमन लेके डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट जो है, हम अगर टेम्परेचर फंक्शन मान लें प्रेशर और वॉल्यूम का, तो यहाँ से dt की वैल्यू होगी del T by del P एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ del P है तो dP, प्लस del T by del V एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dV. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब कंपेयर करें अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this equation is equation number 2. Comparing the equation number 1 to equation number 2 into this way, direct we drive into equation number 1 to equation number 2. Some shining is still here.
So here the term equation number 2 is in this way, comparing equation 1 and 2, यहाँ पे आया है T del P by del T at constant volume upon Cp minus Cv. This is equal to del V del T over del V at constant pressure. क्योंकि जो टेम्परेचर है इट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर कमा वॉल्यूम, तो वहां से हमने कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 2 से dt एंड dt बोथ आर इक्वल. सो जो टर्म है आपका दिस वैल्यू हियर इनटू द वे del T by del V at constant P, that is equal to T del P over del T into V upon Cp minus Cv. क्योंकि दिस प्लस दिस दोनों में dV आ रहा है तो ये बराबर इसको हम लिख सकते हैं. वही इक्वेशन हमने उधर साइड में लिखा है, दिस इक्वेशन. अब इसको हम Cp माइनस Cv को इधर भेज दें, T del P by del T into V dt into ये इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा del V by del T into P. दिस वैल्यू हम जानते हैं अगर फंक्शन P V T हो तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग del P by del T at V into del T by del V at constant P into del V by del T at constant P is equal to -1. Then Cp minus Cv is equal to T at it is -1 upon del T into del V at constant P into del V upon del P at constant T by this method. और यहाँ पे at it is है del V by del T into P. तो हमने del V by del T की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया तो Cp minus Cv की वैल्यू आ गई into this equations. Cp minus Cv is equal to minus T del V by del T का whole square into del P by del V at constant temperature. This is the Cp minus Cv relation into this term. Del V by del T at constant P का whole square into del P by del V at constant temperature. There are the four relations consideration according to this equation. पहला जो है अगर हम del P by del V by T is negative, so always the second term will be positive. Second में है Cp tends to Cv and V tends to 0, so Cp is equal to Cv. So Cp equals Cv at 0 at the absolute temperature. And for the ideal gas तीन केस है इसकी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो Cp माइनस Cv का रिलेशन हमने इसको सॉल्व कर दिया with the help of exact differential. Following relations in the equation. पहला है अगर ये टर्म नेगेटिव हम लेंगे del P by del V at T, if del P by del V at T is negative, so del P by del T का whole square at P will be पॉजिटिव. क्योंकि यहाँ नेट जो आ रही है वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो अगर एक नेगेटिव लेंगे तो दूसरा हमारा पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट सेकंड केस है इफ T इज इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर. T की वैल्यू अगर हमने 0 ले लिया देन Cp इज इक्वल टू Cv. If C capital T is equal to 0, it means that Cp is equal to Cv. And third case, if ideal gas, then Cp minus Cv is equal to R. We know that. तो आइडियल गैस की कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि Pv बराबर RT,
उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी R के इक्वल आएगी। किस तरीके से आएगी इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आइडियल गैस के लिए कैसे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी R के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पे हमने क्या किया, del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R बाई P, इसको हमने V बाई T ले लिया। फिर del P बाई del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू del बाई del V RT अपॉन V एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन V स्क्वायर, देन Cp माइनस CV इज इक्वल टू माइनस T इंटू V बाई T का होल स्क्वायर इंटू माइनस RT अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू R। तो the equation we know that Cp minus Cv is equal to R, and while we applying the Maxwell relation, exact Maxwell relation into this way, then again the Cp minus Cv is equal to R. So there are the three cases for the specific heat at constant pressure and difference of the specific heat at constant volume. One is the if T is equal to absolute temperature, means T की वैल्यू 0 रखेंगे, then Cp is equal to Cv. Second, for an ideal gas, we know that for the ideal gas equation, PV is equal to RT into this way. अब यहाँ से हम इसको V by T ले लें, del V by del T is equal to R by T, हमें पता है R by T is equal to V by T, then del P by del V, क्योंकि इस इक्वेशन में Cp माइनस Cv की वैल्यू जो है वो इस टर्म में del P by del V की वैल्यू del by del V into RT upon V, then solve this minus RT upon V square, that is equal to Cp minus Cv is equal to minus T into V by T का whole square into minus RT upon V square, V square कैंसिल हो जाएगा, T square नीचे बचेगा आपका, T कैंसिल हो जाएगा, तो Cp minus Cv is equal to R. Okay, so this is the ideal gas equation. यहाँ पे देखें कैसे हमने इसको कंपेयर किया है। Cp minus Cv is equal to ये दिया है, हमने पहले कैलकुलेट किया है del V by del T at constant T, और दूसरा है del P over del V at constant T। तो दोनों को हम खुद जब करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी Cp माइनस Cv की, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू माइनस T, पहले में del V by del T की वैल्यू रखेंगे R by P और इसकी वैल्यू V by T, तो उसको सॉल्व करके हमारी डायरेक्ट वैल्यू Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, तो इस तरीके से हम Cp माइनस Cv का रिलेशन निकाले हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल रिलेशन। अब हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द TdS इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन U एंड H, जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा है that the relation in between the U means internal energy and H means enthalpy। तो सबसे पहले हमने मैक्सवेल रिलेशन को ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। By these equations, we derive the TdS equation. So you have to know that the two equations which use generally while we solve any numerical particular according to the Cp minus Cv relation are internal energy की जो equations है उसमें, तो internal energy को हम capital U से indicate करते हैं और जो enthalpy है that interprets by capital H। तो रिलेशन हम पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरनल एनर्जी के बेस पे और फिर इंथैल्पी के बेस पे क्या हमारी रिलेशन बनती है। जो इंटरनल एनर्जी के बेस पे रिलेशन बनती है उसको हम लोग एनर्जी इक्वेशन से भी इसको हम नोटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले
जब हमने मैक्सवेल रिलेशन ड्राइव किया था तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी दैट इज h इज इक्वल टू u प्लस नॉट h दैट इज द dq इज इक्वल टू du प्लस dw। वहां से du की वैल्यू आई थी, हमने dq की वैल्यू जब tds पुट किया था तो ds इज इक्वल टू dq बाई t, वहां से dq की वैल्यू आई थी tds। सो ड्राइविंग the relations of Maxwell, the four equations, one is the first law of thermodynamics from which du is equal to TdS minus TdV। अब वहां से हमने लिख दिया है डायरेक्ट जो पहली इक्वेशन आई थी du बराबर TdS minus TdV। ओके, अब हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ TdS इक्वेशन का। अभी हमने इसके पहले भी वीडियो में TdS इक्वेशन को ड्राइव किया था। जनरली जब हम TdS इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं तो दो बात को अपने माइंड में रखते हैं। पहला, जनरली जो एक्सप्रेशन है वो एक टाइम के बाद हमें एक्सप्रेशन भूल जाता है, तो हम अगर उसको चाहें तो डायरेक्ट समझ के अगर उसको याद कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पहली इक्वेशन जो हम TdS की जब ड्राइव करते हैं तो वहाँ एंट्रोपी लेते हैं फंक्शन टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और दूसरी जो इक्वेशन होती है वो एंट्रोपी होती है फंक्शन टेम्परेचर और प्रेशर का। इसके पहले वीडियोस में भी हमने एंट्रोपी TdS की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इनहेंस किया। सो इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं एक बार हम और फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इससे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल एस ओवर डेल वी इंटू डी वी। यहाँ v है तो v, यहाँ t है तो e। अब ये देखिए ये t और v का फंक्शन था तो यहाँ सफिक्स में डेल टी, यहाँ सफिक्स में डेल v, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए। t ds इज इक्वल टू t डेल एस ओवर डेल टी एट v डी टी प्लस t डेल एस ओवर डेल वी एट t डी वी। t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें पता है dq बराबर cp dt एंड dq बराबर TdS। तो यहाँ से हमारी डेल एस ओवर डेल टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू cp बाई टी। cp बाई टी की वैल्यू हम जैसे ही इसमें पुट करेंगे TdS इज इक्वल टू cp dt प्लस, अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, पहले वाले TdS में थर्ड इक्वेशन लेते हैं, दूसरे वाले में फोर्थ इक्वेशन लेते हैं। तो जैसे ही हम इसमें थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे डेल एस ओवर डेल वी होगा, देन दिस इज इक्वल टू cp dt प्लस t। थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की क्या कहती है, जब हम सेकंड को रिवर्स करते हैं तो tv उसमें tp होता है तो डेल टी बाई डेल पी, पहले में tv दूसरे में tp डेल टी बाई डेल पी, तो डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं डेल एस बाई डेल वी को डेल पी बाई डेल टी एट वी डी वी। दिस इज द TdS फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने इसको ड्राइव शॉर्ट में इसलिए कर दिया है कि मान लीजिए जनरली हमें TdS इक्वेशन 1 ना याद हो तो डायरेक्ट हम इस तरीके से इसको 2 मिनट में ड्राइव कर सकते हैं और फिर उसको डायरेक्ट हम वैल्यू में रख सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे ये जो TdS की इक्वेशन थी हमारी, रिलेशन बिटवीन U एंड H। U को हम क्या कहते हैं, U इज द इंटरनल एनर्जी और H जो है हमारा वो है इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, यहाँ पे रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है U और H। तो पहले हमने जैसे मैक्सवेल रिलेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ TdS से ट्राई किया था तो du बराबर TdS माइनस TdV, ये इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ TdS इक्वेशन जो भी हमने ट्राई किया दैट इज TdS इज इक्वल टू cv dt प्लस t del p by del t ओवर v dv। अब
ये जो du है इसमें हमने TDS की वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि हमको इंटरनल एनर्जी की इक्वेशंस बनानी है। तो du के TDS की जगह ये पूरा उठा के रख दिया। तो du इज इक्वल टू cv dt प्लस t del p by del t ओवर v dv माइनस t dv अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। इसको cv dt प्लस दोनों में dv आ रहा है हियर dv और dv को हमने क्या किया कॉमन ले लिया, dv कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा t del p by del t at v माइनस t, ये इक्वेशन। अब जो इंटरनल एनर्जी है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कामा वॉल्यूम। तो टेम्परेचर कामा वॉल्यूम अगर इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं du इज इक्वल टू del u by del t इंटू डी टी प्लस del u by del v इंटू डी वी। यहाँ b है तो v, यहाँ t है तो यहाँ t। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें cv के साथ जो टर्म है dt और यहाँ पे जो dt है, so we can write here cv is equal to del u by del t at constant volume. So specific heat at constant volume may be written as del u by del t at constant volume। अब del u by del t की वैल्यू cv के इक्वल हमने रख दिया। अब हम अगेन क्या करेंगे cv की जगह, क्योंकि इन दोनों का कंपेयर किए हैं तो cv की वैल्यू ये आ गई है, देन del u by del t at constant temperature that can be written as T del P by del T at V minus P। ये जो वैल्यू है dV के टर्म में, ये जो वैल्यू है तो del U over del V at constant T is equal to डायरेक्ट दिस। तो कैसे हमने इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन को इंटरप्रेट किया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है du के टर्म में एक इक्वेशन लिखा, फिर एंट्रोपी की जो TDS इक्वेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखा, जो du के साथ का टर्म आया था वो और जो dv के साथ का टर्म आया था वो, दोनों को उसमें से कॉमन ले लिया और जो टर्म आया वो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी के बेस जो वैल्यूज हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं या उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के बेस एक इक्वेशन बनाई, सिमिलरली हम इंथैल्पी के बेस भी एक इक्वेशन बनाएंगे। इंथैल्पी जनरली जब हमने मैक्सवेल डेरिवेशन को ड्राइव किया था तो उसमें एक इक्वेशन बनी थी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। वहाँ से हमने DH की वैल्यू du प्लस पी डी वी लिया था प्लस पी डी पी, और DH के टर्म में जो इक्वेशन आई थी सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, दैट इज द DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। सेकेंड TDS इक्वेशन हमने देखिए सामने लिखा हुआ है। सेकेंड TDS इक्वेशन क्या कहता है, दैट TDS इज इक्वल टू CpDT माइनस T del V by del T एट कांस्टेंट P dP। वहाँ से हम DH की वैल्यू को इंटरप्रेट करना है, मींस मैक्सवेल का जो सेकेंड रिलेशन था वो और TDS का जो सेकेंड रिलेशन था वो, उन दोनों रिलेशंस को आपस में हमें एक दूसरे में पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए दिस इक्वेशन मैक्सवेल का जो सेकेंड इक्वेशन एंथैल्पी के लिए लिखा था, सेकेंड जो है TDS इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड TDS इक्वेशन CpDT माइनस T del V by del T एट कांस्टेंट P into dP। अब TDS की इक्वेशन हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जैसे पहले वाले में किया था। तो यहाँ पे DH की वैल्यू आ जाएगी CpDT माइनस T del V by del T एट PdP। तो TDS की जगह हमने ये रख दिया और आखिरी में क्या है VDP। दोनों अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में dP कॉमन है तो dP हमने यहाँ कॉमन ले लिया। देन DH इज इक्वल टू CpDT प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस प्लस V, क्योंकि यहाँ हमने dP कॉमन लिया है तो dP में V आया है तो V माइनस T del V by del T into this। अब जैसे हमने सेकंड में माना था, अगर इंटरनल एनर्जी पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन मान रहे हैं फर्स्ट लॉ में, तो सेकंड में हमने फंक्शन माना था टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का। तो इंटरनल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ इंथैल्पी
तो डेल एच, इसको हम डी एच लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल एच ओवर डेल पी इंटू डी पी। यहाँ डेल पी है तो पी, यहाँ डेल टी तो टी। ओके, अब इस इक्वेशंस में इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 4 दे दें तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से जब हम कंपेयर करेंगे तो डी एच में ये टर्म आया है, ये डी टी आ रहा है, इसमें डी पी आ रहा है, यहाँ भी डी टी आ रहा है और यहाँ पे भी डी पी आ रहा है। तो डी टी को एक साथ इक्वल कर लें और डी पी को एक साथ इक्वल कर लें तो जो वैल्यू आएगी इसको कंपेयर करते हैं तो डी टी है, सी पी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इट मीन दैट हियर सी पी की वैल्यू डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। दूसरा जो आएगा दैट इज यहाँ पे डी पी है, सो वी माइनस टी into this way v minus t del v by del t at constant p is equal to del h over del p. So according to this way we can make a relation in between internal energy and enthalpy. So this is the method to solve the relation between different processes according to internal energy and enthalpy. So with these applications we solve the numerical according to the different types of Maxwell applications. Okay, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी के एप्लीकेशंस को लेके, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।